السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خاکسار عامر حسنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ایک اسپیشل انٹرویو لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور یہ انٹرویو ہے ہمارے ایک اسٹار کا، جس کو میں کہوں گا این انٹرویو ود اے ریئل اسٹار. ستارہ بروج اکبر ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کرنے سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں. آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاءاللہ بہت سارے اکیڈمک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں اور بایو میڈیکل سائنٹسٹ، ینگ ایمبیسڈر اینڈ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے سب سے پہلے آئلٹس میں ہائر اسکور لینے کے بعد آپ نے آئلٹس میں ہی ینگیسٹ کینڈیڈیٹ ان دا ورلڈ کا بھی ریکارڈ قائم کیا. اسی طرح آپ نے ورلڈ ریکارڈ فار ینگیسٹ کینڈیڈیٹ ٹو کمپلیٹ او لیول ایٹ ایج 11، یعنی 11 سال کی عمر میں آپ نے یہ ریکارڈ قائم کیا. اس کے بعد مزید اس سے بھی آگے 17 سال کی عمر میں آپ نے ینگیسٹ سرٹیفائڈ اینٹی منی لانڈرنگ اسپیشلسٹ کا ریکارڈ قائم کیا. اس کے علاوہ مختلف ریکارڈز کے ساتھ ساتھ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ایمبیسڈر آف پاکستان سے آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اپریشیشن ایوارڈ بائی برٹش کونسل. تو یہ مختلف ریکارڈ بنانے والی بیٹی آج ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم بات چیت کریں گے اور کچھ گائیڈنس بھی حاصل کریں گے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت چھوٹی عمر میں ہی بہت سارے ریکارڈ قائم کیے، تو ہم کیسے اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اس لائن پر چل کر بہترین ریکارڈ قائم کر سکیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں بیٹی کو اپنے چینل پر. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹا، اتنے سارے ریکارڈ آپ نے بنائے اور بہت سارا آپ نے نالج بھی حاصل کیا، اور اس وقت آپ جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے اور پھر ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے. میرے خیال سے سب کو یہ بات تو پتہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے. میرے لیے بھی یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا، اور جیسے اس نے چاہا ویسے ہی الحمدللہ اس نے جو سارے تھے وہ اسباب پیدا کر دیے، اور اس کے بعد الحمدللہ ایک کے بعد ایک ریکارڈ بنتا چلا گیا. اب الحمدللہ I'm pursuing my PhD نا، اور اس کے بعد I want to do research، اور میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جو اس میں خاص بات ہے، آج چونکہ ہم ملائیشیا سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ملائیشیا میں بعض بچے ہمارے پاکستانی موجود ہیں. خاص طور پہ ہم جب پاکستانی ہیں تو اپنی قوم کے لیے سب سے پہلے سوچتے ہیں. تو اس بارے میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے اتنا بڑے بڑے گولز اچیو کیے. تو آپ ہمارے پاکستانی بچوں کو جو یہاں پر ہیں، ان کے والدین کو کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے جبکہ اعلیٰ تعلیم کے ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، وہ گھر میں بیٹھے کس طرح سے کیسے سیکھ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس راہ پر چل پڑیں؟ آئی تھنک ہم سب کے دماغ میں ایک مسکنسیپشن ہے، شروع سے ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ صرف اسکول اور کالج ہی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کسی چیز کی لرننگ ہوتی ہے، آپ جب سیکھ لیتے ہیں. مجھے تو شروع سے when I was very young my grandfather head master محمد حسن ناصر، انہوں نے مجھے جب 5 اور 6 یہ بات سکھا دی تھی کہ بیٹا جو بھی چیز آپ سیکھ لیتے ہو دیٹ از لرننگ فار یو. لرننگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اسکول گئے، اے گریڈ آ گیا، آپ کی لرننگ ہو گیا، آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے جس سے آپ کے جو ہے دماغ روشن ہو، جس سے آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے. تو آج کل تو پہلے تو ہم کہہ سکتے تھے انیکوالٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہر ایک کے پاس وہ سرکمسٹانسز نہیں ہوتے جس کے تھرو وہ اپنی ڈریمز اچیو کر سکیں. بٹ آج کل ہم سب کے پاس ایسے ریسورسز ہیں جو کہ ہم پرانے ابھی ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ 100 ایئرز اگو جو یا 200 ایئرز اگو سپوز کہ جو بادشاہ ہوتے تھے ملکوں کے، ان سے زیادہ اچھی زندگی آپ آج کل ایک عام انسان گزار رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ایسے ریسورسز ہیں جو سوچ نہیں سکتے. اب یہ مڈل ایجز تو ہے نہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ کیا تعلیم، وہ اس طرح ایجوکیشن لیتے تھے کہ وہ جاتے تھے، کوئی دور سے سنتے تھے کہ یہ ٹیچر ہے، یہ ایک انسان ہے جو کہ بہت پڑھا لکھا ہوا ہے، تو کہاں سے وہ ٹریول کر کے اس کے پاس نہیں آتے تھے، اور پھر اسے سیکھ کے تو پھر اگلے انسان کے پاس چلا جاتا تھا. اب تو ہر چیز آپ کی پاکٹ میں، یو ہیو ایوری تھنگ اویلیبل ٹو یو آن دی انٹرنیٹ اینڈ اوور یور فون. تو ہمارے پاس تو ایسے ریسورسز ہیں کہ if you don't make use of them I think that would be ناشکری کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کے خزانے کھولے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے نہیں ہیں.
तो फॉर किड्स हु आर स्टेइंग एट होम, पेरेंट्स का मेनली ये कंसर्न होता है कि सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं, ये वो, या आगे आप सोचते हो कि वंस दे आर डूइंग इट, हाउ आर दे गोइंग टू गेट देयर एग्जाम, या यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे. तो अभी हमारे पास चाहे सारे रिसोर्सेज नहीं भी हैं, स्पेशली फॉर रेफ्यूजीज की अगर हम बात करते हैं, फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज राइट नाउ, आप यू कैन स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर, इस नियत से कि वन व्हेरेवर आई वांट टू गो, अगर आप आगे जाना चाहते हैं जैसे भी है, आप वहाँ जब पहुंचेंगे तो देन यू कैन प्रिपेयर फॉर इट नाउ, एंड देन आपके दरम्यान में गैप कोई नहीं आएगा. देयर इज द जीईडी एग्जाम, IGCSEs होते हैं, A levels होते हैं, बहुत सारी बेंचमार्क एग्जामिनेशंस होती हैं उन बच्चों के लिए जो डोंट हैव मे बी अ फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम. होम स्कूल है, हम सारे बहन भाई भी सारे होम स्कूल हैं. सो इफ यू डोंट गो थ्रू अ फॉर्मल सिस्टम, आपके लिए बेंचमार्क एग्जामिनेशंस होती हैं. After giving these, you can give the SAT exams, जो कि आपको they give you the opportunities to go and pursue a degree in university if you want, if that is your goal. जो भी आप लर्निंग करना चाहते हैं, लर्निंग तो किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ, क्रेडल से लेके हमें बोला गया कि ग्रेव तक आपने सीख लिया. तो क्रेडल में तो कोई स्कूल नहीं होता ना, क्रेडल में स्कूल सिर्फ हमारी वालदा होती है, हमारी अम्मी को बोला गया है. तो पेरेंट्स इफ दे टेक द इनिशिएटिव themselves, वो सब काम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अब हम बच्चों को गाइड करना चाह रहे हैं, वालिदैन को गाइड करना चाह रहे हैं, तो वो ये है कि अब यहाँ पर ठीक है, सहूलत तो हमारे पास इंटरनेट की भी है और वर्ल्ड लेवल का भी. कोई एक चीज़ आप मतलब एक गोल सेट कर सकती हैं हमारे ये बच्चों के लिए कि वो किस जगह से शुरू करें. मतलब एक बच्चा अभी स्कूल जा ही नहीं रहा है, घर में वो कुछ इंग्लिश थोड़ा बहुत सीखता है, इंटरनेट पे कुछ देखता है, कार्टून वगैरह इंग्लिश सीख लेता है, थोड़ा उसको समझ आने लग जाती है, तो उससे आगे उसको क्या मतलब करना चाहिए कि वो आई थिंक इससे आगे. सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि कोई भी, सबसे जो हमें पहले चीज सिखाई जाती है, हमारे पेरेंट्स की जो अप्रोच थी कि कोई एक इंटरनेशनल जो वर्किंग लैंग्वेज है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक के ऊपर आपको अबूर हासिल हो. यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू वांट, यू कैन स्पीक अरबिक फ्लुएंटली, यू कैन लर्न फ्रेंच इफ यू वांट. कोई एक इंटरनेशनल वर्किंग लैंग्वेज, पहले जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एक्सेस टुवर्ड्स ग्रेटर एजुकेशन. बिकॉज सारे जो कंटेंट और रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जो एडवांस्ड हैं, वो सारे यू गोइंग टू फाइंड इट इन वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस. जब आपको इन लैंग्वेजेस के ऊपर अबूर हासिल हो गया, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. ये कोई मुश्किल काम नहीं है. 3 years old, 4 years old, ये पेरेंट्स का काम है कि उनको वो चीजें प्रोवाइड करें. आजकल बच्चे बहुत सारा टाइम जो है वो गेम्स पे वेस्ट करते हैं. So instead of wasting time over there, you don't learn anything from games. I personally believe कि जब वो, even if they're learning through content, let's say उनको कार्टून देखने का शौक है, they want to watch YouTube, instead of looking for cheap content जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपको distraction है बच्चों के लिए, teach them something that's quality. आजकल तो science के shows, there are a lot of them out there. So first goal उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि I need to have at least a grasp, a strong grasp over one international working language, and then going on from there, they can learn. जब बच्चों को ये पता हो रहा है कि what I want to do in the future. I'm not saying कि उनका प्रोफेशन अभी से पिक कर ले, कि अगर जी बच्चे ने कह दिया कि मैंने डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर बनना तो इंजीनियर ही बनेगा, but at least they should have an idea in mind that this is what I like to do. This can change in the future, but when they learn to micro learning के बहुत सारी opportunities there are out there. You have small courses, you have small degrees, but the first goal you should have in your mind is, yes, get your language set, have a way for you to learn social skills. पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक डीलिंग, इंसान की बातचीत, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है व्हेन यू आर लर्निंग इन एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट. स्कूल का वाहिद फ़ायदा ये है कि वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है एंड देन यू हैव इंटरेक्शन विद योर पीयर्स. तो उसके लिए कोई एक तरीका नहीं है कि सिर्फ आप स्कूल ही जाओगे तो आपको सोशल स्किल्स आएंगी. हर जगह सीखी जा सकती हैं. आई गिव द एग्जांपल, मेरा छोटा भाई है, उसको अरबिक सीखने का शौक था, कुछ हद तक उसने सीखी भी. तो उसने क्या सोचा, आइडिया उसके दिमाग में ये था कि हमारी the place where we live, एक बाबा जी हैं, वो बाहर बैठते हैं, वो अकेले होते हैं. तो he said कि what I can do is, he speaks Arabic, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाऊंगा, उनसे बातें करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप मुझे भी कुछ सिखा देंगे जैसे आप मुझसे उसमें बात करें. तो इस तरह बच्चे को जब खुद लगन होगी कुछ भी सीखने की तो वो कुछ भी कर सकता है. You can, there are opportunities always out there. मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मैंने कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढी हो और मुझे खुदा ताला ने ना दी हो. तो जब आप कोई चीज़ को एक ईमान रख के, अपने दिल में ये यकीन रख के कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, आप ढूंढते हैं तो आपको यकीनन कोई ना कोई हल मिल जाता है. तो आपकी बात से जो चीज़ मैंने अखज़ की हुई है, मैं नाज़रीन के लिए दोबारा इसको रिपीट कर दूँगा इसलिए कि बच्चे वालिदैन इसको समझ सकें. सबसे पहले तो लैंग्वेज होगी ना, कि इंग्लिश लैंग्वेज पे इस तो वक्त में जबकि वो यहाँ पर बैठे हैं, वो सबसे पहले उसको सीखने की कोशिश करें. और उसके लिए मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं जो तालीमी हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बहुत सारे हैं और दिलचस्पी लेते हैं. मैंने देखा है, ख़ास तौर पे मैंने अपनी बेटी को देखा है इस हवाले से
کہ وہ اس نے یعنی کارٹون بھی دیکھتی ہے, اس سے بھی وہ سیکھتی ہے, کچھ بولنا اس نے سیکھ لیا انگلش میں, سمجھنا آ گیا اس کو. لیکن ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کارٹونز یا وہ جو وائلڈ لائف کے اوپر فلمز ہیں اس میں ہم کچھ اچھی چیزیں اس کو تلاش کر کے خود دیں والدین, تاکہ وہ اس سے لینگویج سیکھنا شروع کرے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ انگلش لینگویج پہ اس وقت سارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زور دیں کہ وہ اردو والے کارٹون وغیرہ دیکھنے کی بجائے انگلش والے ان کو لگا کے دیں. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, میں بتا سکتا ہوں کہ 2-3 سال کے اندر اس بچی نے انگلش کو سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو اس 3 سال کے عرصے میں یہ ہم نے فائدہ اٹھایا. تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس چیز کو اخذ کر کے کم از کم یہ ہے کہ بچوں کی لینگویج کو ایک دفعہ وہ اسٹیبل کر دیں. اس کے بعد پھر وہ جو چیز بھی چاہیں گے انگلش میں موجود ہوگی وہ سیکھ سکیں گے. تو میں آپ سے بالکل. یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ اگر کورسز بھی بعد میں مجھے, بے شک وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, مجھے ویب سائٹس کے آپ ایڈریسز دے دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اگر کسی اسپیسیفک جگہ پہ ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ یہ آپ کے لیے لرننگ کے لیے ایک اچھی جگہ ہے. Yes, of course. ایسے یو ہیو ماسٹر کلاس, یوڈیمی ہوتا ہے, ایڈیکس ہے, کورسیرا تو موسٹلی یوز بھی کرتے ہیں آج کل لوگ. یو ہیو میسو لرننگ, یونیورسٹی آف پیپل, یہ ساری ڈفرنٹ ایسی آرگنائزیشنز دیٹ پرووائڈ فری لرننگ کنٹینٹ فار چلڈرن. اس میں آپ کے پاس سرٹیفکیشنز بھی آ سکتی ہیں, یو کین کلیکٹ دیز تھنگس. اور اس کے بعد آگے جاتے ہوئے ونس یو ہیو اے لینگویج, آج کل ہم لوگ پہلے بات کرتے تھے کہ آئی کیو ہوتا ہے, ای کیو ہوتا ہے, آج کل سی کیو, یو ہیو ٹو ہیو کمپیوٹر انٹیلیجنس, یو نیڈ ٹو نو ہاؤ کمپیوٹر لٹریسی از اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. تو آج کل کے بچے تو پیدا ہی وہ استعمال ہوتا ہے, سین 2 year old 3 year olds دیر ٹائپنگ اوے آتے ہیں فونس فاسٹ, ان کو ہر کام میں خود کرنا آتا ہے. تو آج ورلڈ از موونگ ٹو اے ڈیجیٹل پلیس. خاص طور پہ ہم نے پینڈیمک کے درمیان دیکھا کہ ایوری تھنگ ہیز مووڈ آن لائن, اور کوئی کام جو ہم سوچ سکتے تھے, ہماری سوچ سے باہر تھا کہ یہ کام بھی آن لائن ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو یہ بچے جو مے بی اف دے آر ناٹ لرننگ دیئر کور سبجیکٹس ڈیورنگ دیٹ ٹائم, وہ یہ والی اسکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں جو ان کے لیے نسبتاً ہماری اسٹارٹ میں ہمیں یہ والی ریسورسز نہیں پرووائڈیڈ تھی, ہمیں بعد میں آ کے لرن کرنی پڑی. ان کے لیے تو یہ ایک تقریباً انہیرنٹ چیز ہوگی کہ وہ پیدا ہوتے ہی اولڈ انف ٹو سٹ اینڈ واک, وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف کمپیوٹر اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی کورسز آتے ہیں جو کہ وہ سیکھ سکتے ہیں, اینڈ دے کین لرن تھرو دیٹ کہ کوڈنگ کیسے ہوتی ہے, ایپ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, سافٹ ویئر کیسے بنتی ہے, ویب سائٹ ڈیزائن کیسے ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت آسان ہے, اینڈ دے کین بی اے اسکل ناٹ اونلی کہ ان کی لائف آگے بیٹر ہوگی, ان کے دماغ کو لگا کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں, کریئر پاتھس ان کے لیے اوپن ہوں گے. اٹ کین آلسو بی اے سارٹ آف ارننگ فار دیم, کہ اگر پیرنٹس کو اور بچوں کو یہ نظر آتا ہے, تو آج کل بچوں کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ ونس آپ پیسہ خود ارن کرتے ہو دین یو ریئلائز کہ یس اس کی ورتھ کیا ہے. تو ونس دیر ایٹ دیٹ ایج, ان کے لیے ایک اسکل بھی ہوگی کہ دے کین یوز اٹ ٹورڈز بیٹرمنٹ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اب اس میں اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ہمیں بعض بچے تو بڑے شائننگ نظر آتے ہیں, بعض بڑے کمزور نظر آتے ہیں, جن کو ہم سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یا اس کو بھی ہم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی چیز, آئی تھنک اس طرح کے کوئی بچہ نہیں ہوتا جو کہ ویک ہوتا ہے. ہم لوگوں کے اصل میں پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کا آئیڈیا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں ہوں ایگزیکٹلی میرا بچہ ویسے ہو. اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ کا کلون ہوتا ہے. بچہ خدا تعالیٰ اس کے اندر ڈفرینٹ سول ڈال کے بھیجتا ہے, ڈفرینٹ دماغ کی کیپیبلٹی ڈال کے بھیجتا ہے. گاڈ از نیور انفیئر ٹو اینی ون. اگر اس کی ایک اسکل کمزور ہے تو اس کی دوسری اسکل یقیناً تیز ہوگی, کیونکہ ایکوالٹی اور بیلنس تو نیچر کی ایک انہیرنٹ چیز ہے نا. ہمارا ارتھ یا ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی وداؤٹ بیلنس. سو کوئی بھی بچہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نسبتاً وہ اس کام میں ویک ہے, جیسے کہ وی ہیو دی ایگزامپل آف آئنسٹائن کو کہتے تھے کہ ہاں یہ ایسے ہے, اس کا یہ ویک ہے, تو اس کو خدا تعالیٰ نے کسی اور پرپز کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ ریڈ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا سائنس کی طرف رجحان نہیں ہے, تو صرف سائنس پہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی. یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میڈیسن ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر نہیں بن سکتا, خدا تعالیٰ بہت بڑے آرٹسٹ بھی پیدا کر کے بھیجتا ہے. خدا تعالیٰ یہاں پہ بہت سارے اور کاموں کے لیے انسانوں کو پیدا کرتا ہے. تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس کی اسکل کوئی اور, اینڈ آئی کین گارنٹی کہ کوئی ایسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کے پاس کم از کم کوئی ایک اسکل ایسی نہ ہو جو کہ اس کو شائن کرنے کا موقع نہ دیتی ہو. تو پیرنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, جب بھی کوئی پیرنٹ یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ کمزور ہے, دے آر ناٹ اے گڈ پیرنٹ themselves. انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کر کے دیکھا کہ ہاں میرے بچے میں یہ صلاحیت ہے. یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جائے گی, اور اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایکسپیریمنٹ, لائف لرننگ ایکسپیریمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. آپ چیزیں ٹرائی کر کے دیکھیں. جب آپ کے بچے ہوتے ہیں, میری ماما تو خود جو ہے شی یوزڈ ٹو لرن ود اس, کہ جب وہ ہمیں پڑھاتی تھی وہ پہلے خود سیکھتی تھی اور پھر ہمیں پڑھاتی تھی. ایون دو انہوں نے ہر چیزیں کی ہوئی ہے, شی ہیز ہر ماسٹرز ڈگری, ان کو ہر چیزیں آتی ہے, بٹ وین شی از لرننگ انہوں نے دیکھنا کہ ہاں
टाइम चेंज हो गया इवन बिटवीन अस. मुझे उन्होंने डिफरेंट तरीके से पढ़ाया, मेरे छोटे बहन भाई पढ़े हैं, शी इज टीचिंग देम इन अ डिफरेंट वे. तो बच्चों के साथ खुद भी सीखना पड़ता है. अगर आप खुद सीख रहे हो और आपको वो चीज़ मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब बच्चे के लिए भी वो मुश्किल है. तो उसको एक आसान तरीके में समझाना, दैट इज द स्किल ऑफ अ पेरेंट. उसके अलावा बच्चे तो दे रिलाई ऑन यू. उनको तो इस एज में और कोई उनके पास है नहीं. तो अगर आप कोई उनको ये डिस्करेज करना शुरू कर दो कि खासतौर पे बच्चे के सामने कभी ये बात नहीं करनी चाहिए कि आप वीक हो, क्योंकि वो हमें क्रिमिनोलॉजी में ये बात पढ़ाते भी हैं कि जब आप किसी एक चीज़ को एक नेगेटिव एक्सपोजर देते रहते हो कि आप ये हो, मोस्टली क्रिमिनल इसी तरह पैदा होते हैं कि उनको बार बार बोला जाता है कि आप डिलिंक्वेंट हो, आप हुलिगन हो, आप ये करते हो, वो करते हो. तो वो बच्चे फिर कहते हैं हाँ मैं करता हूँ तो मैं करूंगा. तो इसी तरह जो हम कहते हैं ये बच्चा वीक है, ये समझता नहीं है, ये बेवकूफ है, तो फिर वो बच्चे अपने आप को भी वही बिलीव करना शुरू कर देते हैं. उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो देखें कि हमारा बच्चा किस फील्ड में गिफ्टेड है और फिर उसको पॉलिश करें. ज़बरदस्त, ये बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई. अब इसमें एक चीज़ और भी मैंने देखी है, यानी मेरे मुशाहिदे में भी है, ज़ाती तौर पे भी. कुछ बच्चे प्राइमरी लेवल्स में हम देखते हैं फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो एकदम से हर चीज़ से पीछे हट जाते हैं. उसकी कोई ख़ास वजह आपके ज़हन में हो, क्या हो जाता है? मैं प्राइमरी में इतनी शाइनिंग स्टार नहीं थी तो इसलिए एक्सपीरियंस तो नहीं मैं बता सकती. बट आई थिंक कि कई दफ़ा ये होता है इट्स अ बर्न आउट सॉर्ट ऑफ थिंग कि इंसान ये बिलीव करता है कि अच्छा ये बच्चा फर्स्ट आ गया तो उसको लाइफ में जी इसने सब कुछ अचीव कर लिया. अब वो बच्चा फर्स्ट नहीं आता अगली दफ़ा तो पेरेंट्स डोंट अकाउंट फॉर अदर सर्कमस्टांसेस जो उसमें काउंट करते हैं. कई दफ़ा फ्रेंडशिप सर्कल उस तरह का होता है कि बच्चे दे इम्प्रूव अ लॉट, या कई दफ़ा टीचर क्लास में ऐसी होती है जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है. तो पेरेंट्स रूम नहीं अलाउ करते मूवमेंट का. जी आप फर्स्ट आया तो आपने सारी ज़िंदगी फर्स्ट ही आना, फर्स्ट नहीं आया तो आप फेल हो गए हो. तो वो बच्चे वो दे सफ़र फ्रॉम बर्न आउट. वो सारा उनका जो ध्यान है वो बजाय इसके कि वो एक्चुअल लर्निंग की तरफ, वो उनका सिर्फ ये होता है कि पॉइंट वन ऊपर हो गया, पॉइंट वन नीचे हो गया, और इसी के ऊपर दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ ऑन इट. उनका गोल जो होता है वो उसी वो कम्पीट कर रहे होते हैं उसी 20 क्लास या 40 चिल्ड्रन होंगे अपनी क्लास में, उसी क्लास के अंदर कम्पीट करते करते दे स्पेंड देयर टाइम, दे डोंट लुक बियॉन्ड दैट. और आहिस्ता आहिस्ता वन यू इंसान ग्रो करता है तो फिर रेस बड़ी होती जाती है. प्राइमरी में तो आपके पास रेस उसी स्कूल तक है या उसी डिपार्टमेंट तक है, उसी ग्रुप ऑफ क्लासेस तक है. जब आप बड़े होते जाते हो वन स्पेशली नाउ आपकी रेस इंटरनेशनल हो जाती है. बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पे भी नहीं, दे गो बियॉन्ड दैट, दे कम्पीट ऑन अ स्टेज जो कि हम पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे. और जब उस पॉइंट पे आते हैं, जब वो बेंचमार्क एग्जामिनेशन आते हैं, फिर बच्चे स्ट्रगल करते हैं. तो शुरू से ही आपको पिन पॉइंट कर लेना चाहिए हाँ दिस इज गोइंग टू बी अ वीकनेस फॉर द चाइल्ड इन द फ्यूचर. अगर आपका खुद कोई वैसे इंटरेस्ट नहीं है और आप उसको सिर्फ एज अ बूस्टिंग पॉइंट इस्तेमाल करें अपने बच्चे को कि हाँ मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेगा, मैं सारी अम्मियाँ इकट्ठी होंगी चाय पीने के लिए, मैं बताऊंगी कि माय चाइल्ड स्कोर्ड फर्स्ट, आपके बच्चे की क्या पोजीशन आई है. तो एक डिग्रेड करने का बच्चों का तरीका और कुछ नहीं है. तो इन तरफ उनकी इंटरेस्ट देखना कि वो फ्यूचर में जाके उनकी जिंदगी अच्छी होगी, वो अपने तरफ देख रहे थे. तो उसको वंस यू ट्राई एंड फिक्स दैट, आई थिंक मेन रीजन यही है कि बच्चे शुरू शुरू में तो वो पॉइंट वन पॉइंट टू माँ बाप को खुश करने के लिए ले लेते हैं, बट बाद में जाके उनके लिए वही चीज स्ट्रगल बन जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जब ऐसा हो रहा है कि वो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है तो उसको वालिदैन को चाहिए थोड़ा सा उसको वॉच करें कि क्या वजह पैदा हो रही है और उसको फिर उस तरफ मोटिवेट करें कि तुम्हें इस तरह करना है. ना एग्जैक्टली. और तो कमजोर होता सिर्फ पॉइंट्स की नजर में कमजोर होना नहीं देखना चाहिए. आपको ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे ने इस साल क्या नया सीखा. अगर वही साइंस और वही फिजिक्स और वही वही मैथमेटिक्स वो सीख रहा है. मैंने देखा है स्पेशली हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे स्टार्ट में. पाकिस्तानी करिकुलम में क्या होता है, बच्चा क्लास वन में भी फोर्सेस सीखता है, क्लास टू में भी फोर्सेस सीखता है. क्लास वन की फोर्स क्या होती है, पुश और पुल. क्लास टू में वो थोड़ा सा वो बताते हैं कि अच्छा जी पुश और पुल भी होती है और फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं. क्लास थ्री में आते हैं तो बताते हैं फ्रिक्शन भी होती है. तो 1 से लेके 8 तक थ्रू आउट अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप यू कैन लुक एट एनी वन ऑफ द बुक्स. क्लास 1 में भी लाइट पढ़ाएंगे, क्लास 8 में भी आपको लाइट पढ़ाएंगे. क्लास 1 में फोर्सेज हैं, क्लास 8 में भी फोर्सेज होंगी. क्लास 1 में आपको लाइफ साइकिल बताएंगे, क्लास 8 में भी आपको लाइफ साइकिल बताएंगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करके कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. हम लोग बिल्कुल ही हट चुके हैं. अगर हमारे किसी बच्चे को पूछें कि हिस्ट्री क्या थी या कल्चर क्या है, किसी और मजहब के बारे में बता दो कि रिलीजन्स दुनिया के कैसे हैं, कोई एजुकेशन, कोई हम उनको जो है ना एजुकेशन वो सिर्फ वो लिखी पढ़ी चीज पट्टी पढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे. तो अगर पेरेंट्स को भी सिर्फ इस लेंस से नहीं देखना चाहिए कि मेरे बच्चे के पहले 98 मार्क्स आए, इस बार 95 आए, वो मेरा बच्चा कमजोर हो गया. ये देखें कि मेरे बच्चे ने इस साल क्या सीखा. लास्ट ईयर उसने सपोज उसने कोडिंग सीखी थी, तो इस साल उसने ही इज लर्न हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट.
Yeah, last year he learned how to speak, write French. This year he's learned a bit of I don't know, Japanese or Chinese or Korean or whatever. तो कोई नई चीज जो आपके बच्चे ने देखी हो उस लेंस से देखें कि मेरा बच्चा yes he is growing, as long as he is growing as a human. उसकी नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज उसका ज्यादा होना चाहिए, उसको कुरान करीम की नॉलेज होना चाहिए. तो when he is learning all of these things, तो आपका बच्चा he is on the right track. आगे कोई भी बड़ा इंसान देख लें आप, you'll see कि वो they struggled in school. Elon Musk है, he is a billionaire, he's one of the richest people on earth right now. उसका start देखना, he was outed from his company, उसकी जो भी companies are bankrupt, he's lost millions and millions of dollars for Google, for Facebook. जितने उसने crash किए, जितने उसने failure किए, कोई इंसान सोच नहीं सकता कि nerves अपने कैसे उसके strong हैं. He doesn't send his children to the regular school. उसका ख्याल है कि कंपनीज में भी हायर करने के लिए डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. He thinks schools learning doesn't happen in school, it doesn't happen in colleges. तो कोई भी इस तरह जो है आपके अपने बच्चों की लर्निंग ग्रोथ कर्व को देखें कि हाउ दे ग्रोइंग, व्हाट न्यू स्किल्स दे रिक्वायर्ड, जो कि आइंदा उनकी जिंदगी में उनकी हेल्प करेंगे, बजाय उनके पॉइंट्स पे फोकस करें कि ये नहीं करना है. ठीक है. तो इसमें फिर ये भी थोड़ा सा बात आएगी जो मैं चाह रहा था कि हो जाए कि पाकिस्तानी जो सिस्टम है हमारा तालीमी, उसमें फिर यही चीज़ें हैं जो हो रही हैं, इसकी वजह से फिर इतना वो, हालांकि उसमें शाइनिंग लोग तो होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकते फिर. वो नहीं आ सकते क्योंकि आप देखें कभी भी हम कहते हैं कि हम वहाँ पे जी हम ब्रिटिश बुक्स पढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. वो बुक्स स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के लिए डिज़ाइन की जाती हैं. क्यों? क्योंकि उनके वहाँ के पेरेंट्स की मेंटालिटी का पता है कि हाँ ये पेरेंट्स कहते हैं कि ये आज काम हो गया, ये कल काम हो गया. और फिर लर्निंग जो होती है, लर्निंग कैसे होती है कि आप कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उस कॉन्सेप्ट को सीमेंट करने के लिए यू हैव टू, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह होता है. यू हैव फाइल्स जो कि आपके, जैसे अब आजकल तो बच्चों को यही समझ आएगी ना कि फाइल्स हैं वो स्टोर हो रही हैं, सेव हो रही हैं. जब आप एक ही दफा हर चीज उसके ऊपर डंप कर दोगे तो वो फिर इट्स नॉट सॉर्टेड, इट्स अ वेरी बिग मेस इन देयर. और लर्निंग क्या होती है कि वंस यू लर्न समथिंग, आप उसको यू कैन लुक एट द रिसर्च आउट देयर. साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वन आप कोई चीज एक दफा लर्न करते हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. उसको सीमेंट करने के लिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनाने के लिए यू हैव टू रिवाइज इट ऑफन एन नंबर ऑफ टाइम्स. हाफ एन आवर के बाद दोबारा रिवाइज करो, 2-3 आवर्स के बाद, फिर 1 डे के बाद, फिर 2-3 डेज के बाद. उसको जब चीज़ को रिवाइज करना ये नहीं मतलब कि उसको रट्टा मारो, एग्जैक्ट वही चीज़ बोलते जाओ, बट यू शुड सीमेंट द आइडिया विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन योर माइंड, और फिर जाके आपकी लर्निंग होती है. पाकिस्तान में ये अप्रोच नहीं है. किसी भी बड़े कंट्री को देख लें जिसके अच्छा एजुकेशन सिस्टम समझाता है, यू हैव जापान, यू हैव साउथ कोरिया, यू हैव डेनमार्क, फिनलैंड, यूएसए, यूके. तो इन सारे कंट्रीज में लर्निंग का मतलब ही और है. वो एक एक मिनट अपने बच्चे का कीमती समझते हैं. इवन ड्यूरिंग लंच टाइम उनको वो स्किल सिखा रहे होते हैं कि बेटा ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपने बर्तन ईट किया, यू गोइंग टू क्लीन दोस, अपने एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है हाउ डू यू शेयर दम. उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है. उस टाइम को भी ज़ाया नहीं किया जाता. हम बच्चों को सिर्फ खेलते हैं, माँ बाप अपने गले से उतार के भेज देते हैं. आई हैव हर्ड कि पेंडेमिक के दौरान जब बच्चे घर में थे तो पेरेंट्स कहते थे हाँ देखो कितनी स्ट्रगल होती है, स्कूल कहीं खुल जाए हम अपने बच्चों को भेज दें, बजाय इसके कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल की होती कि हमारे बच्चे मे बी फॉर द ओनली टाइम इन देयर लाइफ ड्यूरिंग द स्कूलिंग टाइम एटलीस्ट वो हमारे पास, और इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है उनके लिए, तो वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर देम, उनकी बेटरमेंट के बारे में सोचें. तो वो सिर्फ गले से उतारने को रहते हैं. जाके तो औलाद तो आपकी है, एंड देयर फ्यूचर इज आल्सो गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ योर फैमिली लिव्स आफ्टर इट्स ड्रीम. तो आपको उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखना चाहिए कि इस टाइम को हम उनके लिए कैसे बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ तक है कि मेरा बच्चा क्लास 10 कर लेगा, 11 कर लेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी जाएगा, अच्छी जॉब कर लेगा, तो देन आई डोंट नो व्हाट टू से एल्स, क्योंकि ये इंसान तो नॉर्मल इंसान है. आपके बच्चे यू शुड थिंक कि आवर चिल्ड्रन हैव बीन ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस. उनको एक खास मकसद के लिए, एक खास टाइम पे लाया गया है, और उसके आपके लिए फिर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपने उन बच्चों के लिए जो कि इतने बड़े काम के लिए पैदा किए गए हैं उनके लिए आपने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी. फिर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करता है कि हाँ एज अ पेरेंट ये मेरे काम है और ये मुझे करना चाहिए. तो अपने बच्चों के लिए एक बड़ा गोल दिमाग में रखें तो आपके बच्चे इंशाल्लाह दे विल ऑलवेज मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इसमें आपकी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि किसी भी एज में, जैसे ये आपने वेब डिज़ाइनिंग का जिक्र किया है और छोटे छोटे कोर्सेज का, किसी भी एज में ये शुरू किए जा सकते हैं, यानी ऐसे बच्चा जब इंग्लिश सीख ले उसके बाद कोई भी चीज़ शुरू कर ले.
डेफिनेटली कोई भी जिस बच्चे को ABC की पहचान हो चुकी है और उसको कंप्यूटर में टाइप करना आता है, दे कैन डू इट. इन द UK वो सिंस क्लास 2 एंड क्लास 3 वो स्क्रैच स्टार्ट कराना शुरू कर देते हैं, MIT एप्लीकेशन, जो कि थ्रू दैट दे टीच बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे ब्लॉक्स के थ्रू दे टीच कोडिंग. तो किसी भी एज में जब बच्चा वंस ही लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज दीज लेटर्स और उसको समझ आ गई कि प्रॉम्प्ट्स क्या होती हैं, वंस ही लर्न हाउ टू गिव एंड टेक कमांड्स, बच्चे किसी भी एज में लर्न कर सकते हैं. हमारे पास काउंटलेस एग्जांपल्स हैं. हम अरफा करीम के एग्जांपल देखें, एट व्हाट एज शी गॉट सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एट 9. तो खास तौर पे ये जो होती है एज, इट्स लाइक जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, इंसान की जो एलिमेंट्री ईयर्स होते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ लेट्स से सपोज 1-2 से लेके टिल द एज टिल द टाइम गेट्स टू 10-12 इयर्स ओल्ड, ये उसके गोल्डन ईयर्स होते हैं लर्निंग के लिए. जो बच्चों को ये काम इज देयर लाइक मोर यू हैव, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीमेंट बनना चाहता है, उस टाइम वो वेट क्ले है. जिस तरह आप उसको मोल्ड करना चाहते हो, जिस शेप में आप उसको डालते हो, जिस कलर में आप उसको डालते हो, वो बच्चा उसी तरह ग्रो करता है. और वो इतनी पोटेंशियल होता है इंसान का, कुछ कर नहीं सकता. हम ऑपोजिट करते हैं, हम वो इयर्स वेस्ट कर देते हैं और आगे जाके जो है फिर हम उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं. कभी भी जो बच्चा है जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है या कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलता है, उसने उसका ग्रामर के रूल नहीं सीखे होंगे. हमारी मदर टंग है उर्दू, हमारे ज़मीन के सारे बच्चे बोलते हैं, किसने ग्रामर के रूल सीखे, किसने सीखा वर्ब क्या है, टेंस क्या है, कैसे डालना है, वो क्या है. हमें बस आती है बिकॉज वी लर्न इट. तो वो जो टाइम है वो वेस्ट करने के बजाय उसमें अगर कोडिंग और डिजिटल लिटरेसी आप उनको सिखाना चाहते हैं, यू कैन डू इट एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज यू हैव स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन. और आपके पास इवन ऑन योर फोन या इफ यू हैव अ लैपटॉप, यू नो, वन एंड उनके पास एक टाइम है, उनको दें कि दिस इज द सेट टाइम, सेट स्केड्यूल, इसके दरमियान आपकी लर्निंग होगी बेटा और आपने ये टाइम ज़ाया नहीं करना. तो once you're holding them accountable, they will be able to do it. क्योंकि उनको ये समझाएं, वो हम स्टोरीज तो सुनाते हैं लेकिन उनका मॉरल नहीं उनको बताते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज हमने जो है वो सीखनी है ताकि बच्चा आगे लर्निंग के लिए जो उसके पास खुला मैदान है उसमें वो कम से कम समझ सके. और दूसरी बात ये है कि हम उसको मोटिवेट करें मुख्तलिफ़ चीज़ों में जिसमें वो दिलचस्पी रखता है, उसको स्किल्स जो हैं वो. आजकल आपने एक कोर्सेरा का ज़िक्र किया, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मलेशिया के जो रिफ्यूजीज़ हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं उसमें. उसमें सिर्फ रजिस्टर करना है आपने और आपने उसमें से कोर्सेज़ सेलेक्ट करके सीख लेना. उसमें इंग्लिश के कोर्सेज़ भी हैं सीखने के, स्किल्स के. तो ये चीज़ें सब जो वालिदैन सुन रहे हैं, हमारा आज का मकसद भी यही था कि हम वालिदैन को गाइड कर सकें कि वो यहाँ पर जो वक्त है उसको ज़ाया ना होने दें और अपने बच्चों को इस लाइन पर लगाएं ताकि वो एक अच्छे शहरी भी बन सकें, एक अच्छी तालीम भी हासिल कर सकें और आला मकासद हासिल कर सकें. कोई अगर आखिरी आप कुछ बात करना चाहें तो फिर हम इसको प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे. वक्त ख़त्म होने वाला है. नहीं, बस बहुत जज़ाकल्लाह. सबके लिए दुआ ही है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे. और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ज़ाया मत जाने दें, उनके फ्यूचर की तरफ देखें और आप होप करें. ये दिमाग में रखें कि हमें सिखाया जाता है कि डोंट वेट फॉर योर शिप टू कम इन, स्विम आफ्टर इट. तो ये मत इंतज़ार करते रहें कि मेरी कश्ती आएगी, फिर मैं कश्ती में बैठूँगा, फिर मैं अपने मुकाम पे पहुँचूँगा और फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा. अगर आपको ये यकीन है कि आप उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसकी तैयारी आज से स्टार्ट करें ताकि कल को आपके बच्चे जो रेस है उसमें पीछे ना रहे बल्कि लीड करें दुनिया को. बहुत शुक्रिया बेटा, आपने वक्त दिया हमें आज के इस प्रोग्राम के लिए और हमारे वालिदैन को, बच्चों को गाइड किया कि किस तरह से हम तालीमी मैदान में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि तालीमी मैदान जो है इसमें आगे निकलना बहरहाल हर एक के लिए ज़रूरी है. अगर हम उसमें पीछे रह जाएंगे तो हम फिर हर चीज़ में पीछे रह जाएंगे. और यहाँ पर मैं ज़िम्नन ज़िक्र करता चलूँ कि लैंग्वेजेस सीखने के हवाले से कम से कम 7 लैंग्वेज जो है एक बच्चा एट अ टाइम सीख सकता है. इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए कि अभी इसको इंग्लिश सिखा रहे हैं या कुछ और. इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी आप उसको जिसमें उसको दिलचस्पी महसूस हो. यहाँ पर मलेशिया में ख़ास तौर पे मलय और चाइनीज़ भी आसानी से सीखी जा सकती है, तो इस तरफ भी वालिदैन तवज्जो कर सकते हैं और सिखा सकते हैं. और आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, इंटरनेट खोलें और सर्च करें और जो भी अच्छी चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी की मदद से सेलेक्ट कर लें जो वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी और से गाइडेंस ले लें. और मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में भी चंद ऐसी चीज़ें जो हैं वेबसाइट्स डाल दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए जो लोग इस तरफ तवज्जो करना चाहते हैं, बल्कि सबको करनी चाहिए. जज़ाकल्लाह. तो यहाँ पर इजाज़त लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं बेटी आपका भी. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप नाज़रीन के लिए कुछ और अगर बेहतर हम गाइडेंस ले सकें बेटी से तो फिर आइंदा भी तकलीफ देंगे. शुक्रिया बहुत बहुत. अस्सलाम वालेकुम.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.